सॉरी, आपने सिर्फ 6 सेकंड के लिए हाथ धोए। कितनी देर धोना चाहिए? हाय, वैसे आई एम आयुष्मान खुराना। हेलो अंकल, पहले प्रॉपर हैंड वॉश कर ले। ठीक है दोस्त, कैसे? हम्म, 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 हम्म। कैसे? अंकल को अब अपने पैंट को अच्छी तरह रब करो, आगे और पीछे। ऐसे? रुको रुको, आपके नेल यहाँ बहुत कीटाणु छुपे होते हैं। यहाँ? और हाँ, हमको मत भूलना। हो गया दोस्त? पानी बचाना भी तो जरूरी है। वाह, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? और एक और बात, हैंड वॉश पूरा 20 सेकंड के लिए करना चाहिए। समझा। फिर ड्रायर हैंडल विद टॉवल और एयर ड्राई देम। गॉट इट। तुम्हें इतना सब कुछ सिखाया किसने? आ जाओ दिखाता हूँ, मेरे जैसे मेरे और भी दोस्त हैं यहाँ पर। ओ बाय द वे, माय नेम इज कृष्ण सिंह, नाइस टू मीट यू। चलो। ये बच्चे ही हमारा फ्यूचर। This world, this planet is being left for our children. This is the generation that will inherit the earth long after we are gone. India is a young country. In fact, it has one of the youngest populations. It is home to 1/5 of the world's youth. If we can channel the collective energy of this youth demographic towards socio-economic and environmental progress, then think of how much faster we can get to our sustainable development goals. And so it is garv ki baat that youth heroes are leading the charge in India, championing climate action, promoting hygiene, and advancing public health. Their innovative solutions and passionate advocacy are driving meaningful change, inspiring communities to adopt sustainable practices. These are the future leaders of our nation. These are the young change makers who will pave the way for a healthier, greener India. और इसीलिए हमें इन बच्चों की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। बहुत कुछ कर सकते हैं ये बच्चे, क्यों बच्चों? Well, thank you, Ayushman. I think Ayushman has set the context for our show today. As we wrap up the 10th season of the NDTV Detol Banega Swasth India, the focus shifts to the future. It is young people today who hold the key to transformative change. The youth bring fresh perspectives, innovation, and boundless energy, making them pivotal in driving positive shifts in various aspects of society. And today on Independence Day, we are celebrating the power of India's youth. We are at the MCD Tagore Garden on this special day in the MCD school. Now, over the years, our campaign has been working very closely with children. Millions of children are part of the Banega Swasth India campaign through the Hygiene Curriculum, Hygiene Olympiad, and the CRI schools. So let me just tell you a little bit about the CRI schools. Climate resilient schools are the schools designed to be resilient to the impacts of climate change. They incorporate features and practices that help mitigate environmental impact and adapt to changing climate conditions. These schools focus on sustainability, including energy efficiency, water conservation, and waste management, while also educating students about climate change and caring for the environment. The CRI schools are creating a learning environment that supports both the educational needs of the students and the health of our planet. आपने climate change की बात की। जी। This is perhaps the most pressing issue of our times. आपको पता है कि climate change क्या होता है बच्चों? वाओ, अच्छा सब बताइए क्लाइमेट चेंज है क्या? आप क्या समझते हैं? मैम, क्लाइमेट चेंज का मतलब है जलवायु परिवर्तन। और जो भी पृथ्वी पे पॉल्यूशन होता है ना, तो पृथ्वी की जो ओजोन परत है उसमें होल्स हो रहे हैं, जिससे जो सन है उसकी पराबैंगनी किरणें सीधा हमारी पृथ्वी पे आती है और जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। बरसात में बारिश नहीं हो रही है और सर्दियों में बर्फ़ नहीं हो रही है। और मैं उत्तराखंड से हूँ, तो जिस हिसाब से वहाँ आज तक बारिश होती थी और उस हिसाब से इस बार इतनी बारिश नहीं हुई है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे उसका इफेक्ट हम लोगों पे पड़ता है, जिससे कई बीमारियां होती हैं। Climate change has a bearing on every single sustainable development goal, on every single vulnerable and marginalized section of the population, on the rich and the poor, on cities and villages, and it has a direct link with health and hygiene. Think of extreme weather events, droughts,
floods, rain, and extreme heat. So, did you all know that in fact, children who bear the brunt of climate change, it impacts them the most despite contributing minimally to greenhouse gas emissions? So, it's not really their fault, but they're bearing the brunt. It's imperative to prioritize their protection and empower their voices. And who better to do it than themselves? So, joining us today, let me introduce our panel. We have with us Vihan Agarwal, co-founder One Step Greener. We have with us Naveen Singh and Anushka. They are in the audience. They are from the CRI schools and they've come all the way for this special show. Thank you so much. We have Dr. Narendra Saini, Chairman, AMR, Standing Committee, Indian Medical Association. We also have with us Mr. Ravi Singh, Secretary General and CEO, WWF India. Joining us is also Dr. Randeep Guleria, former Director, AIIMS Delhi. Dr. Prashant Saxena, Senior Director and Head Pulmonary Critical Care and Sleep Medicine, Fortis Hospital, Vasant Kunj and Fortis Gurugram. And of course, we have with us Mr. Ravi Bhatnagar, Director, External Affairs and Partnerships, SOA Reckitt. Well, thank you all so much for joining us on this very special Independence Day. So, Vihan, you began your journey as a child right activist by the age of 11, I think. Ab 11 saal ke the? 14. My younger brother was 11. Yeah. अच्छा, he So was they both 11, have been doing this started together. young. That's Yeah. amazing. तो आपको क्या लगता है कि बच्चे क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए और should they start young like you did? Absolutely. I mean, we're going to bear the brunt of it. We are bearing the brunt of it already. If we're not going to do it, who is, right? So therefore, we have to do something about it. We've frankly given up on the older generation to change their ways, so we have to take action and do it ourselves. अनुष्का, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी. आप आए हैं उत्तराखंड से, आप CRI स्कूल में पढ़ते हैं. उसके बारे में बताइए, आप उन स्कूलों में क्या सीखते हैं और मिशन लाइफ के बारे में यहाँ के बच्चों और हम सबको उसके बारे में एजुकेट करिए. मैम, मैंने डेटोल क्लाइमेट स्कूल की साइट से ये सीखा है कि हम गार्बेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं. तो मैंने उस साइट से ये सीखा है कि हम जो गार्बेज होता है वो 2 टाइप्स का होता है, अजैविक और जैविक. जो जैविक होता है ऑर्गेनिक, उससे हम खाद बना सकते हैं जो हमारी क्यारियों के लिए बहुत यूज़फुल होती है. और अजैविक जो प्लास्टिक की चीज़ होती है उससे हम इको ब्रिक बना सकते हैं जो हम अपनी क्यारियों की बाउंड्री बना सकते हैं जिससे प्लास्टिक जलेगा भी नहीं और पॉल्यूशन भी नहीं होगा. थैंक यू. वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरह, आई मीन हाउ व्हाट एन इम्पैक्ट इट मेक्स. आयुष्मान, आप पूछना चाहेंगे कुछ बच्चों से? इनफैक्ट ये अनुष्का उस राज्य से है जहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बहुत इफेक्ट्स देखे गए हैं उत्तराखंड में. चाहे वो लैंडस्लाइड्स हैं या वेदर सिचुएशन वहाँ पर बहुत चेंज होती रहती हैं. सो आई थिंक वहाँ के बच्चे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर चुके हैं. ज़्यादातर कोस्टल एरियाज में फिर भी हमें कम नज़र आता है, पर पहाड़ों में, हिमालयाज में, खासकर उत्तराखंड में आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है क्लाइमेट चेंज का. सो आई एम वेरी प्राउड कि आप इस उम्र में यहाँ पर आए हैं, दिल्ली आए हैं और अपनी बात आपने सामने रखी है. थैंक यू सर. सो प्राउड ऑफ यू अनुष्का. थैंक यू सर. इनफैक्ट यहाँ पे और भी बच्चे आए हैं, ऑब्वियसली सारे नहीं आ सकते थे. यहाँ पे नवीन है हमारे साथ. आयुष्मान, हम आपसे पूछना चाहेंगे नवीन, आप जो सीखते हैं, अनुष्का ने हमें बताया कि आप स्कूल में क्या सीखते हैं, लेकिन वो अपने घर पे जाके अपने भाइयों बहनों या कम्युनिटी में वो कैसे बताते हैं कि जो आप स्कूल में सीखते हैं आप वापस अपने कम्युनिटी में कैसे लेके जाते हैं? जो मैम, मैं कई चीज़ें सीखता हूँ स्कूल में, जैसे कि हैंड वॉश करना चाहिए, कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, सोच के बाद, या फिर जब भी आपको अपने हाथ गंदे लगे तब हमें हैंड वॉश करना चाहिए. तो मैं यही अपने छोटे भाई बहनों को सिखाता हूँ. और जैसा कोई बुजुर्ग लोग होते हैं उनको पता नहीं है कि हाथ धोना चाहिए, वो मिट्टी में काम करके आते हैं तो फिर खाना खुना खा लिया तो इससे वो बीमार हो सकते हैं. मैं उनको भी बताता हूँ कि हाथ धोना चाहिए. और हम सीखते हैं कि कचरे को कैसे अलग करें. जैसे गीला कचरा होता है, सूखा कचरा होता है, ई कचरा होता है. इन सबको अलग रखना चाहिए ताकि जो गीला कचरा है वो हमारे खाद में काम आ सके, जो सूखा कचरा है वो रिसाइकलिंग के लिए जा सकता है, और ई कचरा वो भी रिसाइकलिंग के लिए जा सकता है. तो ये सारी चीज़ें हम स्कूल में सीखते हैं मैम. आई थिंक बच्चे ये समझ रहे हैं कि अगर हम साफ रहेंगे तो कनेक्ट कि बीमार नहीं पड़ेंगे. सो तो कनेक्ट बिटवीन इट्स सो ऑब्वियस एंड बच्चे वो सीख रहे हैं. रवि सिंह जी, हम आपसे शुरू करना चाहेंगे. आई थिंक यू आर द एक्सपर्ट हियर. आयुष्मान, वुड यू लाइक टू? रवि सिंह जी, आपसे पूछना चाहता हूँ कि you're doing a lot of community-led conservation like turtles and dolphins, and how saving biodiversity impacts climate and health in general. Thank you, and thank you for inviting me here. You mentioned aquatic biodiversity, which is basically the examples you took were dolphins and turtles, of course the fish, wild fish. Primarily, they are the indicators of our biodiverse water system. If they are there present, if they are in good number, that means your water, your rivers are healthy. If your rivers are healthy, your nation is strong. It's as equal and quotient as that. Secondly, the
presence of certain creatures which are very delicate in their existence, dolphins for instance, you took that name, they have evolved over 200 million years or so. And their presence on Earth indicates a certain balance of life for us, which they represent. जी And the understanding of this, which is so close to our nation, that heritage, tradition, life, culture, religion, all these are involved in the sanctity of life. And what does it mean? It means that the sanctity of life has a representation to the quality of life. This is the equal one to the other that it represents. थैंक यू, आपने इतने अच्छे शब्दों में उनको समझाया। आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने मैसेज दिया क्लाइमेट चेंज के साथ साथ आयुष्मान, आई थिंक जो उन्होंने बताया कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पावर करना हर बच्चे को बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। मुझे तो ये लगता है बच्चों की बात कर रहे हैं और हम मिलेनियल्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, जेन जी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो जेन अल्फा ही है जो करने वाले हैं आगे जाकर कुछ। जी Dr. Saini, last year we spoke to you in detail and it was very enlightening. And this time around, my question to you is that climate change is contributing to a lot of illness and infections. And what kind of precautions and medication should we take to counter that? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा हाइजीन की बात चल रही थी। जी हाइजीन हम सबके लिए जरूरी है और बच्चों के लिए खास तौर पे, क्योंकि ये लोग जो चेंज ला सकते हैं वो शायद हम लोग नहीं ला सकते। हाइजीन पे एक बात कहना चाहूँगा कि हम वर्ड लूज टर्म यूज करते हैं। हाइजीन मीन्स प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द डिजीज, यानी कि मरीज अपने आप को डिजीज से बचाना और दूसरों को भी बचाना। यदि छोटी सी बात हम हाथ धोते हैं, हाथ धोना एक बहुत सिंपल सी बात मानी जाती है, लेकिन हाथ धोना एक सबसे बड़ा हाइजीनिक है कि हम अपने आप को बचाते हैं और दूसरों को भी बचाते हैं। तो दूसरा आपने कहा कि क्या दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। विश्व भर में ये बात चल रही है, विश्व भर में, कि हमारे पास एंटीबायोटिक्स नहीं है और हम इसका अंधाधुंध अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। आज का मैसेज सिर्फ ये है, यदि हम बीमार हैं, दवाई बिना डॉक्टर के मत लीजिए, सिर्फ अपने आप को हाइजीनिक रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, स्वच्छ रखिए, आपको कोई बीमारी नहीं, क्योंकि कोई दवाई की जरूरत नहीं है। तो एक तरफ वायरसेस बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कितनी वायरसेस, पैथोजेंस बढ़ रहे हैं। एंड वेरी ऑफन हम अननेसेसरी आई थिंक पॉपिंग ऑफ पिल्स जो करते हैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो रवि, वी हैव चिल्ड्रन हियर विद अस जो आप देख रहे हैं कि CRI स्कूल से है, हाइजीन ओलंपियाड के विनर्स हैं। टेल अस द इम्पैक्ट, लाइक जिन बच्चों ने इन्होंने हाइजीन करिकुलम पढ़ा है, हाउ हैज़ द बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन हेल्प्ड इन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, क्योंकि हम उसी की बारे में आज बातचीत कर रहे हैं। So, first of all, thank you, Ambika, and thank you, NDTV, for having us for the 10th season finale. We have been continuously working with the kids. Our journey has been remarkable when we started with 2,500 kids in the season 1 to now actually reaching to around 30 million kids across India. By large, this is one of the biggest programs, not just on health, it's the biggest program on One Health, where there is an integration of the human health, animal health, plant health, and we also, we have been evolving from year to year to year, and we saw we created an index, which is the climate index, which we did for the northeastern India along with the NDTV and Ernst & Young. We saw there's a huge potential and need to bring change among the kids, and which is being supported by the Prime Minister's, one of the flagship programs, Mission Life also. जी So we thought why not to work with the kids and make them the change agents, because they are first-hand experiencing what's happening to the environment and climate around them. We also inculcating something, Ambika, which is basically self-care. यस Self-care for the kids, so that they go back and they educate other kids and they educate themselves. So the whole curriculum is in place. And I'm very proud to tell you, when we met Mr. Ravi Singh in our office, our leadership Gaurav agreed to take WWF climate curriculum to all the schools where the hygiene curriculum is actually there in place. So that's a point of interaction and intersection what we want, in the future. And there's some very relevant studies what we are actually doing at this moment to understand the impact of the climate resilient schools on the overall well-being on the kids, the happiness index, the health index,
And the third thing is basically the school illness days, how we are able to reduce all this illness days. So it's a long journey for us. बहुत कुछ किया है, लॉन्ग जर्नी है. इनफैक्ट बच्चे, जैसे रवि ने कहा, बच्चों आपको एम्पावर करना है. यू ऑल आर द फ्यूचर, आप ही हमारा भविष्य है. हमारे साथ इतने दिग्गज मतलब इस एक्सपर्ट्स हैं. इनफैक्ट आप देख सकते हैं विहान, वी हैव सच एक्सपर्ट्स. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस या बच्चे, अगर आपके लिए डॉक्टर सैनी, डॉक्टर प्रशांत सक्सेना हमारे साथ हैं. ही इज़ रियली द एक्सपर्ट. कुछ सवाल हो आपको जो पूछना चाहें, प्लीज़ गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस. मेरा क्वेश्चन डॉक्टर सैनी से है. मुझे आपसे ये पूछना है कि सर, जैसे अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो यहाँ पे बैक्टीरियाज बढ़ते हैं या घटते हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज होगा यदि हम अपने आप को हाइजीनिक नहीं रखेंगे. हाइजीन सिर्फ हमारे हाथों से नहीं, हमारी अपनी से नहीं है. हाइजीन इन इन्वायरमेंट, हाइजीन इन आवर सराउंडिंग्स, हाइजीन इन आवर बॉडी, ये सब यदि चीज़ें ठीक रखेंगे तो बैक्टीरिया बढ़ेंगे नहीं. दूसरा, जब ये बैक्टीरिया कैसे ग्रो होते हैं, उनके लिए भी एक टेम्परेचर चाहिए होता है. यस, दिस ह्यूमिड एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि हम अपने आप को हाइजीनिक रखेंगे, अपनी दूरी मेंटेन रखेंगे, अपने हाथों को साफ रखेंगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो बैक्टीरिया बढ़ेंगे भी. एनवायरनमेंट को हम हाइजीनिक रखना है. यदि हमने खाना खाया, कुछ जो बचा हुआ खाना हमने यहीं बाहर फेंक दिया, तो क्या होगा? बैक्टीरिया वहाँ ग्रो कर जाएंगे. उनको भी खाना चाहिए, उनको भी ह्यूमिडिटी चाहिए. तो इन्वायरमेंट इस समय बहुत अच्छा है बैक्टीरिया के लिए, लेकिन हम उनके ऊपर जैसे ना खाद डालते हैं, हमने अपना खाना छोड़ दिया, कुछ गंदगी छोड़ दी, तो क्या होगा? उनके लिए वो खाद का काम करती है, वो ग्रो करेंगे. इसलिए यदि हम अपनी आसपास की, हम सारे बच्चे सोच लें कि हमने अपनी आसपास की इन्वायरमेंट को ठीक रखना है, स्वच्छ रखना है, तो कोई भी इन्वायरमेंट आ जाए हम स्वस्थ रहेंगे. थैंक यू सो मच डॉक्टर सक्सेना, डॉक्टर सैनी. इनफैक्ट सबने इतनी अच्छी तरह बच्चों को समझाया डॉक्टर रवि सिंह. लेकिन आई थिंक जो सबसे इफेक्टिव होगा, क्योंकि हम सब में से विहान इज़ द यंगेस्ट जो ये बच्चों को रीच आउट कर सकते हैं. आई थिंक अगर आप बच्चों को इफ़ यू वांट टू टेल देम योर जर्नी, अगर आप उन्हें समझा सके कि इन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए 14 साल की उम्र में जो शुरू किया, that may motivate them a lot more. इन्होंने of course they've given their expert opinions, but अगर आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को अपनी जर्नी के बारे में. तो मैं और मेरे छोटे भाई ने 2018 में ये जर्नी शुरू किया था. बेसिकली आई एम एस्थमेटिक. आई हैव severe asthma, and the air pollution, I've lived in Delhi all my life, has affected me very badly. And I've always wanted to do something for the environment, कि कुछ ना कुछ तो करना ही है. और स्कूल में सिखाते हैं कि पेड़ लगाइए, उससे हो जाएगा. लेकिन कितने पेड़ लगाएं और कहाँ लगाएं? दिल्ली में जगह भी नहीं है, कहाँ लगा सकते? पार्क में लगाएंगे तो वो उनका देखभाल भी कौन करता है? तो वो एक थॉट प्रोसेस मेरे में था. एंड आई वाज इन, आई थिंक 7th grade, जब आई वाज गोइंग टू स्कूल, एंड न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा था कि जो गाज़ीपुर लैंडफिल है, उस समय दिल्ली का और आई थिंक एशिया का लार्जेस्ट लैंडफिल था, वो उसमें आग लग गई थी और वो कोलैप्स हो गया था और 2 लोग दब भी गए थे उसके अंदर. तो वो पढ़ते ही आई फेल्ट कि मेरा जो कूड़ा है वो लैंडफिल में जा रहा है, वो जल रहा है और वही पोल्यूशन मेरे लंग्स में इफेक्ट कर रहा है. तो जब ये छोटा सा कनेक्शन मुझे एकदम साफ दिखाई दिया, तो मैंने सोचा कि मैं घर पर क्या कर सकता हूँ, मैं अपना शुरुआत कैसे कर सकता हूँ. तो आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड आई फाउंड आउट दैट द बेस्ट वे ऑफ reducing waste going to landfill is to segregate waste and ensure it gets recycled. But क्या हो रहा था कि मैं अलग तो कर रहा था कूड़ा, लेकिन जो भैया आ रहे थे उठाने के लिए वो सब मिक्स करके ले जा रहे थे. तो उस समय फिर मैं सोचा कि मैं रिसाइकलर से बात करता हूँ कि एटलीस्ट मेरा जो सूखा कूड़ा है वो तो रिसाइकल हो जाए. लेकिन रिसाइकलर्स बोल रहे थे कि आपका तो बस 20-30 kg है, हम लोग तो ये लेंगे नहीं. एंड वहाँ से जो शुरुआत हुई, हमने जो भी मम्मी थे नेबरहुड में, जो आंटीज़ थे, उनके ग्रुप में हमने एक मैसेज डाला और फिर हम लोग घर से पिकअप करना शुरू किए ड्राई वेस्ट. अब हम लोग 7 cities में हैं इंडिया में. वी आर कलेक्टिंग वेस्ट फ्रॉम 25,000 homes every month, ensuring it's recycled and helping them and helping schools as well as offices and institutions go zero waste. Well, that is how I think youth gets empowered. Thank you so much for sharing our journey. Now let's go across to Dr. Randeep Guleria, former director AIMS. Dr. Guleria, thank you so much for joining us. What changes are you seeing in infections and diseases due to climate change, and how can good hygiene practices help people avoid them? If you look at what has happened over the last 24 years, that is this century,
we've seen a lot of outbreaks and infections happening from SARS to MERS to the H1N1 pandemic to the COVID-19 pandemic, and a lot of other infections which occur in regional areas that are happening. We've also seen the Nipah virus outbreak recently. All of this is related to climate change and the fact that there is a change in the environment, the fact that there is now a crowding of space as far as the globe is concerned. We're becoming a global village. Travel has become much more. And also there is now the ability of viruses to jump species and infect humans. And that is why if you look at all the outbreaks that have happened in the last 24 years, this century, all of them have been because of viruses jumping species from zoonotic infections becoming human infections and causing outbreaks and pandemics. All of this is due to climate change, and therefore hygiene in terms of prevention of the spread of infection becomes very, very important, whether it be hand hygiene, whether it be preventing infection by covering your cough, or being careful about disposal of your sputum that you have. All of these are very, very important steps in preventing the spread of such infections. Dr. Guleria, we have all just seen how the students here are so involved and have so many questions. If you can share with them what measures they can take to improve hygiene practices. बच्चों को अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इन्फेक्शन घर ले जा सकते हैं और घर में फिर अगर उनके पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको इन्फेक्शन हो सकता है जो सीरियस हो सकता है. तो बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए. पहली चीज ये कि अगर आप स्कूल जाएं, अगर आपको बुखार खांसी जुकाम है तो घर पे रहें, स्कूल ना जाएं, क्योंकि स्कूल जाने से आपका जो इन्फेक्शन है वो सारे क्लास में फैल जाएगा और लोगों को भी हो जाएगा. दूसरा, अपना हाथ रेगुलरली धोएं. हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब भी खाना खाएं तो अपना हाथ धोएं, और जब भी आपको लगे कि आप किसी ऐसी चीज को टच कर रहे हैं जिससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है तो हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें. अगर आपको कहीं किसी के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट है और उसको जुकाम नजला है तो या तो वो भी मास्क लगाएं, आप भी मास्क लगाएं, और कुछ हद तक उससे दूरी भी रखें तो वो भी बेहतर रहेगा. दूसरा, मैं ये कहूँगा कि बच्चों को अपना इन्वायरमेंट अच्छा करना चाहिए. हमने कई स्कूल में ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव शुरू किया था. आप अपने स्कूल में देखो कि ग्रीनरी ज़्यादा हो, कार्बन फुटप्रिंट कम हो. अगर आप आ रहे हैं तो बस में आए, प्राइवेट कार में ना आए. अगर पैदल चल सकते हैं तो पैदल चलें, जिससे क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन हम दोनों कम कर पाएं. We are slipping into a short break. Keep watching NDTV Detol Banega Swasth India season finale. There is a lot more coming up, including the BSI anthem. Stay tuned. आप में से फोन कौन कौन यूज करना जानता है? Wow. सबको फोन यूज करना आता है. हाँ, आजकल सब. Favorite अगर topic. आप में से कोई ऐप बनाना चाहता हो तो किस पर ऐप बनाता? सर, मेरे को ऐप बनाना है इन्वायरमेंट पे, जिसके थ्रू जो हम लोग होते हैं वो कैसे क्लीन रह सकते हैं, वो भी कार्टून के थ्रू. क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा कार्टून देखना पसंद करते हैं, तो हम कार्टून के थ्रू उन्हें क्लीननेस, मतलब क्लीन कैसे रख सके अपनी बॉडी को, वो सिखाएंगे उस इन्वायरमेंट वाले ऐप से. वेरी गुड. आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ. सर, मैं ऐसा ऐप बनाना चाहती हूँ जिस ऐप का नाम है पर्सनल हाइजीन मोड. उस पे अगर मैं कोई चीज़ भूल रही हूँ तो उसमें सायरन बजे बहुत तेज़ से. जैसे कि मैं अगर हैंड वॉश खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना भूल रही हूँ तो उसमें सायरन बजे. तो इनकी तरह today's youth are very tech savvy and they are using that savviness, leveraging technology and innovation to revolutionize health and hygiene practices with fresh perspectives and a knack for digital solutions. They're developing apps, smart devices and educational platforms that promote better hygiene and health outcomes. Absolutely, Ayushman. Technology and innovations play a pivotal role in enhancing health and hygiene to improve public health, and digital platforms
felicitate health education as well as behavior change, promoting better hygiene practices. So today we have with us to discuss about all of this, we have with us Nikunj Malpani, co-founder and CEO NeoDocs, Mr. Neerath Bhatnagar, Senior Advisor Dalberg and founder Belong. We have with us Nav Agarwal, co-founder One Step Greener, Anupriya Nayak, CEO Menstrumate, and of course we have with us Mr. Ravi Bhatnagar. Ravi, technology plays a very important role for transforming healthcare by making it more accessible. लेकिन आप Dettol के through कैसे यहाँ तक पहुँच पाए? We are seeing like climate is changing and it's a responsibility of Reckitt as an organization on the public health and not just for the Dettol, through Dettol. So we have created something which is called Protect QI. So Protect QI is there in the Northeast, India, in all the Northeastern states, where you can actually evaluate your self-risk to the STIs and the STDs. It can tell you like how much the risk is. It's low, moderate or high. And then it also signals you to nearby facilities where you should go there for your counseling. And it's deeply linked to the government's programs on youth and on growing up. Third thing is the self-risk assessment on malaria, which we are seeing, like, as we know, like Bareilly is one of the districts which has around 80% of the malaria load of whole of Uttar Pradesh because of its, the way it is structured, the way the geography is of Bareilly. So we are bringing an app there where you can actually do your assessment, like how prone you can be to malaria, and then the steps what you can take. Largely the focus is on self-care for the moms, for the kids under 5, through other programs what we do, but yes, tech has a huge role to play. Yes, we're also trying to further strengthen our Hygia game, which has currently 5 levels. And this year, like Candy Crush has unlimited levels to play. We also want to create something on the very similar lines where the Hygia is unlimited. So we're going to make Ayushman play the game in a bit. Yeah, I want to really. Let's see what level you reach. I will try to, yeah. I used to be a gamer earlier, but anyway, Ravi, your excitement and enthusiasm is amazing. Last year also, you're always very excited to tell what's happening with Dettol and your stakeholders, with Reckitt and everyone. My next question is to Nikunj, that what inspired you to create NeoDocs and smartphone-based tests, and how do you envision these things, especially in the rural areas जहाँ पर pathology labs होती नहीं है? Hi Ayushman. Hi everyone, it's lovely to be here. So मैं थोड़ा सा time लेता हूँ to explain what do we actually do. So we build acid test cards. इस पे आप अगर sample डालो, urine, blood, and you simply click a photo using your phone, 30 seconds में results आ जाते हैं. What do you say? So you don't need labs, you just need your phone. So हम ये करते हैं. आज बहुत बड़ा issue है delayed diagnostics या फिर misdiagnostics. तो हमने सोचा अगर जो काम लैब की मशीन करती है वो हम फ़ोन पे कर पाए तो कितना अमेजिंग होगा. तो घर पे टेस्ट हो सकता है, हॉस्पिटल्स में हो सकता है, क्लिनिक्स में हो सकता है, गवर्नमेंट सेंटर्स में हो सकता है. दैट इज़ हाउ वी एक्चुअली स्टार्टेड. एंड वी एक्चुअली स्टार्टेड विद द थॉट ऑफ बिल्डिंग फॉर convenience. So I'm born and brought up in Mumbai. I stay in Lokhandwala, went to school in Juhu, went to college in Powai. So we actually started building for that. By chance last year, we got selected as one of the winners of Maharashtra government's programs, which got us a chance to work with the government in the rural areas. तो वहाँ जाके मुझे समझ आया कि जो असली इंडिया है, वहाँ पे कितनी दिक्कतें हैं. And then I realized that what we are creating can actually help people in rural areas. So we have multiple apps, vernacular languages. We help train the health workers. So that's how we are bringing about a change. Wow. That's great, Nikunj. 80% भारत छोटे शहरों में, गाँव में बसता है और वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं. It's path breaking. Thank you so much. Next question is to Neerath. Dalberg, Wash और behavior change के लिए AI की काफ़ी help ले रहा है. आप बच्चों को बताना चाहते हैं कि क्या चल रहा है इसमें? Thanks for having me here, NDTV and Ayushman. We worked on sanitation, we worked on agriculture, we worked on climate change, and what one realizes very quickly is that all of these are multi-pronged problems. So you need
Obviously, the hardware to be there. You need the toilets to be there. You need the hand washing stations to be there. Financing has to be there. The regulation on waste management has to be there. But ultimately, none of this will matter if behavior change is not there. So behavior change is very, very important. And behavior change is more complex than we commonly think, right? So obviously, there's a huge amount of value that IEC campaigns, that informational campaigns, that even films like the ones that you do, they are really important in shifting social norms, but you need all of this to come together. So the thing is, we need to do these things in a very scientific way. And the world is changing so rapidly, right? You've got COVID, which happened a few years ago. And all of these risks are coming together. Even in the last panel, we were told how climate is exacerbating health risks, right? And sanitation risks. So the whole idea of AI for us is how do we democratize behavior change expertise? India has so many different government entities. It has so many different NGOs. It has so many different organizations. And we partner very closely with Reckitt and with Plan. So the question is, AI को लेके जैसे कि अभी बच्चे जो बोल रहे थे कि उनके पास जो ऐप है इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी है. So how can we harness AI to really spread to make 1 million people experts in behavior change, right? Without that, without this democratization, I don't think it'll actually move forward. And that's what led us to creating this platform called ABCD, the Atlas of Behavior Change and Development. And there we are working with a lot of partners, including Reckitt, Plan, many government agencies, UNICEF, on these kinds of behavior change programs. Thank you Thank so you much. so much, नीरज. अगर आज हम यहाँ MCD टैगोर गार्डन स्कूल में हैं, NDTV डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन के फिनाले के लिए, और अब हम बातचीत कर रहे हैं इनोवेशन के बारे में. और अनुप्रिया, मैं आपके पास आना चाहूँगी. How do you see innovation shaping the future of health and hygiene? और खासकर अगर मैं आपको menstrual hygiene के बारे में पूछूँ, because you started something called Menstruate, उसके बारे में हमें बताइए, बच्चों को बताइए. So thank you for having me here, and hi everyone. So I was 15 when I started Menstruate with 2 other co-founders, Prisha and Vanalika. They're unfortunately not here today. And what we are doing is we are trying to revolutionize the sanitary sector of the country, because right now it's pretty stale. There's not a lot of innovation that happens in that sector. And जो हमें पता चल रहा है कि there's a lot of problems in how in women who are not able to access these products, or they are not able to afford these products. So what we are doing is we are developing sanitary pads very affordable and in a very accessible way through underutilized sugarcane bagasse. And we are taking this from like juice vendors. So हम उनके पास जाते हैं and उनके जो गन्ने के जो छिलके होते हैं वो हम लेके आ जाते हैं and हम उसी से pads बनाते हैं. And because our raw material acquisition cost is so low, we're able to retail at a very low cost as well. There's not a lot of communication between mothers and daughters. Ki menstrual hygiene kya hai. So when their daughters come of age, they're very ashamed and they're very scared of this overwhelming process that is menstruation. तो उसके लिए we are designing these story books, these children books, which introduces periods in a very safe and a very healthy way with a lot of visual illustrations, so that कि उनको भी समझ आए कि this is not a process that needs to be afraid of, that they need to be afraid of. Hi, Nav. So the question for you is कि how do you see youth-driven innovation shaping the future? और क्या challenges face करते हैं young innovators इसमें? I think जो innovation है वो एक कदम से शुरू होता है, और वो एक कदम एक्शन होता है. जो मेरा संस्था है जिसका नाम वन स्टेप ग्रीनर या एक कदम हरियाली है, उसमें जब हमने शुरू किया था, मैं 11 साल का था, मेरा भाई 14 साल का था, और हमारे दिमाग में ये नहीं था कि एक दिन मैं 17 साल का हूँगा और मैं इतने लोग के सामने बात करूँगा. ये मेरे दिमाग में कभी आया नहीं था. लेकिन जो हमने एक कदम लिया इनोवेशन के तरह, हमने बोला कि नहीं, हमारे घर से जो कूड़ा निकल रहा है दैट हैज़ टू गेट रिसाइकल्ड. वो हमें कूड़ादान भेजना ही नहीं है, उसको हमें रिसाइकल करना है. और फिर 7 साल हो गए काम करते हुए, और हमने ऑलमोस्ट 5 लाख यूथ आपके जैसे को एजुकेट किया है, और रिसाइकल ऑलमोस्ट 10 लाख किलोग्राम वेस्ट को रिसाइकल किया है, और इसकी वजह से 50 मिलियन लीटर पानी बचाया है. और ये मुझे सिर्फ एक चीज़ बताता है, ये मुझे बताता है कि एक 11 साल का बच्चा और एक 14 साल का बच्चा एक कदम आगे बढ़ने में इतना प्रभाव ला सकता है, जलवायु परिवर्तन में इतना बदलाव ला सकता है कि आप सोचो कि आप क्या कर सकते हो. मैं कहना चाहता हूँ कि आपको कुछ करना है तो आपको करना चाहिए.
किसी और के बात मत सुनो और वो एक कदम आगे बढ़ो. It's great to have these youngsters, I mean, speaking like this. They मतलब really are the आपकी- voices and our future. आपकी उम्र क्या है अभी? 17 साल का हूँ मैं. 17. 17, yes. 17. But very well said. आप सीखिए इनसे कुछ. आप ज़्यादा फर्क नहीं है, आपसे 6 साल बड़े हैं सिर्फ ये. और आपकी उम्र के थे जब इन्होंने शुरू किया था. इनके भाई 14 साल के थे सिर्फ. Congratulations, Nav. So proud of you. And next question is to Nikunj again, जो मुंबई से आए हैं. मैं भी मुंबई से आया हूँ और काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ मैं जानने के लिए जो आपने न्यू डॉक शुरू किया है, वो इनोवेशन जो शुरू किया, उसके चैलेंजेस क्या क्या रहे होंगे आपके लिए तो उसको ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए, स्पेशली रूरल एरियाज़ में? बहुत सारे चैलेंजेस थे क्योंकि जैसे आई कम फ्रॉम अ अर्बन सिटी. रूरल एरिया में बहुत ही अलग तरह के लैंग्वेज अलग होते हैं, लोग अलग होते हैं. वहाँ पे ट्रेन करना बहुत सारे बैरियर्स होते हैं और ख़ासकर हम एक मेडिकल डिवाइसेस में काम कर रहे हैं. तो मेडिकल डिवाइसेस फॉर राइट रीजंस यू हैव टू प्रूव योर एक्यूरेसी, गेट वैलिडेशंस, गेट सर्टिफिकेशंस, देन डिप्लॉय. एंड आप जब कुछ नया करने जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में तो वो ऑफ कोर्स दे विल लुक एट इट वेरी केयरफुली if it's properly working or no before they can let it out in the audience, क्योंकि जनता की हेल्थ का सवाल है. तो वो बहुत सारी चीज़ें होते हैं, उनको मीटिंग द राइट पीपल, ट्राइंग टू कन्विंस देम, एक पायलट से शुरू करना, उसका इम्पैक्ट दिखाना. तो ये मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं बट इट्स ऑल वर्थ इट. आई थिंक जो हमें सक्सेस मिलती गई, जो हम इम्पैक्ट देख रहे थे लोगों में, वी हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इम्प्रूव देयर हेल्थ. ऐसे औरतें थी जिन्होंने पहले दे हैड मिसकैरेजेस ड्यू टू इश्यूज एंड ड्यू टू आर टेस्ट दे आइडेंटिफाइड इश्यूज एंड तो उनका फिर बेबी हो गया. सो ऑल ऑफ दिस मेक्स अस रियली रियली हैप्पी. In fact, thank you. I just want to come to you, Anupriya. मैं सोच रही थी जो आप बात कर रहे थे कि your mother is मतलब रूरल वेस्ट बंगाल से हैं, तो आप कम्युनिटीज़ के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, खासकर अगर मेंस्ट्रुमेट की हम बात करें? हाउ डू यू रीच आउट टू द कम्युनिटीज़? When we started with Menstruate, जब पहली बार जब हम लोग बाहर जाके लोगों से बात कर रहे थे, तो एक चीज़ तो समझ आई कि बहुत लोग बात ही नहीं करना चाहते यार. मतलब ये जो पीरियड्स है 355 मिलियन वुमेन इन द कंट्री, तो बहुत लोगों को होता है, बट even then I think only 15 to 20% of women actually have access to periods or period products, safe period products. तो उसके लिए जब हम बाहर जाके जब हम बात करने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे कभी नहीं सुनते हैं. मतलब आप लोग तो यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं, आई एम so thankful, बट बहुत बार हुआ है कि मतलब नहीं सुनते हैं लोग. एंड आई फील लाइक दैट्स ओके बिकॉज व्हेन यू अप्रोच इट, मतलब धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा के, जैसे उन्होंने बोला एक एक कदम बढ़ा के व्हेन यू गो टुवर्ड्स अ डेस्टिनेशन, देन दैट वर्क्स. तो हम लोग क्या करें कि अभी वी आर ट्राइंग टू अप्रोच मेंस्ट्रुएशन इन अ वे दैट मेक्स इट ईजी फॉर यूथ टू अंडरस्टैंड. तो इसमें हमने जो हमारे पैम्फलेट्स निकाले हैं, जो हमने हमारी बुक्स निकाली हैं, वी आर ऑल्सो डूइंग इट इन रीजनल लैंग्वेजेस, जो कि जैसे कि एक वाइडर ऑडियंस को पहुंच सके एंड वी आर एबल टू कम्युनिकेट with the masses of the country, which I think is very important when we are talking about issues like menstruation, जो कि historically है, but यार अभी तक मतलब there's not that solution that has come out. So that is something that we really want to work in. Congratulations अनुप्रिया. एक ऊर्जा होती है एक उम्र में जब आप कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, देश के लिए. आई थिंक दैट्स द राइट एज. जब आप टीन होते हैं, टीनेजर होते हैं, और आपकी उम्र बिल्कुल परफेक्ट है इस टाइम. AI और टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्थ केयर को कैसे आगे लेके जा रहा है? आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और ये बच्चे इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो AI जो है वो अगर हेल्थ केयर की पूरी वैल्यू चेन देखेंगे, अगर अलग अलग स्टेप्स होते हैं, डायग्नोस करना, उसको ट्रीट करना और फिर उस ट्रीटमेंट से अडहियर करना. तो जो AI है वो इन तीनों स्टेजेस पे बहुत इफेक्टिव हो रहा है. तो जैसे कि निकुंज ने अभी बताया, तो डायग्नोस्टिक स्टेज है, तो उसमें AI का बहुत यूज़ हो रहा है. जो पहले चीज़ें आपको सैंपल देना पड़ता था, आप सिर्फ इमेजरी से हो रही हैं. सिमिलरली जो एक्चुअल मैचिंग अभी बेस्ड ऑन डायग्नोसिस, उस पेशेंट की डिटेल्स पे क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उनको, वो काफ़ी इनोवेशंस आ रहे हैं. और बच्चों के लिए आई थिंक बहुत सारे अभी टूल्स ऐसे आ गए हैं जिससे कि आप कैसे, अभी तो आप बहुत यंग हैं, 11-12 साल के हैं, तो अभी आपका जो है फिटनेस, प्रिवेंटिव हेल्थ, वो काफ़ी रेलेवेंट है. और जैसे कि आपने आई थिंक एक जो बच्चे थे वो बोल रहे थे कि ऐसी रिमाइंडर्स आएँ कि मैंने हाथ वॉश नहीं किए हैं तो रिमाइंड मुझे ऐप
करे, तो इस तरह की चीज़ों में बहुत अपॉर्चुनिटी है। और इंडिया एक्चुअली इतनी सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंडिया में डेवलप हो रही है, और जो एआई के मॉडल्स हैं वो वाकई डेमोक्रेटाइज करने वाले हैं, जिस तरह से इनोवेशन होने वाला है। आई थिंक जस्ट टेकिंग कि जो नीरज कह रहे थे, रवि, मेरा आपसे सवाल ये है, क्योंकि आप यहाँ इतने बच्चे हैं, वी हैव 2 यंगस्टर्स, आई मीन यू स्टार्टेड रियली यंग, आप बच्चों के साथ काम करते हैं, बहुत क्लोजली काम करते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल ये यंगस्टर्स जो यहाँ बैठे हैं, इनोवेशन की अगर बात करें? सो बच्चों, इनोवेशन तो आप ही लोग करते हैं और आप ही सिखाते हैं। हमने स्टेम एजुकेशन हाइजीन किट बनाया, हमने बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को दिया, टीचर्स को दिया, प्रिंसिपल्स को दिया, लेकिन जो स्टेम एजुकेशन किट निकल के आई वो आपके एज ग्रुप के बच्चों ने ही बनाई। आज वो स्टेम एजुकेशन किट जो है वो अराउंड 1 लाख के आसपास स्कूल्स में जाता है, और उस बच्चे के फोटो भी है जिसने बनाया वो स्टेम एजुकेशन किट। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो स्टेम एजुकेशन किट बनाने में कुछ हमें कोई बाहर से कुछ नहीं लेके आना पड़ा। हमारे घर में हैंड वॉश होता है ना, चाहे डिटॉल का है या दूसरा है, हैंड वॉश होता है। घर में कॉर्न स्टार्च भी होता है जिससे हम लोग पकौड़े वगैरह तलते हैं। उन दोनों को मिला के आप, जैसे वो डो बॉल होती है ना, जैसे आप उसको बना के फ्लावर बना सकते हैं, खींच के मिला लेते हैं, उसको गूंद लेते हैं, जैसे आटा गूंदते हैं उसी तरह से उसको गूंद लेते हैं, उससे फ्लावर बनाते हैं, उससे डक बनाते हैं, उससे हॉर्स बनाते हैं, तो वही आपका कस्टमाइज सोप हो जाता है। और आप उसको फिर जो है आप अपने वॉशरूम में जाके खुद यूज़ कर सकते हैं, जो कि चाइल्ड फ्रेंडली, चाइल्ड सेफ भी है, और उसमें सब सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सेफ है। सोप जो अलग अलग डिज़ाइन में है, ये मिलेनियल्स के टाइम पे क्यों नहीं थे, मैं जानना चाहता हूँ रवि। ये इनको जेन अल्फा जो है बहुत इसका फ़ायदा उठा रही है। आप क्या शेप्स बनाते हैं? कुछ भी, आई थिंक मैं भी जेन अल्फा की तरह बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ डायनासोर से। हाँ, ओके, तो अब आपको सही जगह लेके आए। या एब्सोल्युटली। बच्चे ही हमारा फ्यूचर है, और हम बात कर रहे हैं कि हाउ टुडेज यूथ आर एट द फोरफ्रंट ऑफ क्लाइमेट एक्शन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ड्राइविंग सिग्निफिकेंट चेंज टुवर्ड्स सस्टेनेबल फ्यूचर। यही बच्चों के पास एनर्जी है, क्रिएटिविटी है, एंड दे आर कमिटेड ऑन रीशेपिंग हाउ वी एड्रेस दीज ग्लोबल चैलेंजेस। इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हाउ कंबाइनिंग फन विद एजुकेशन बाय लेवरेजिंग द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी can help instill lifelong hygiene practices in children, ensuring better health outcomes for the future. So do stay tuned. We showed you at the start of the show that learning about hygiene can be fun. You can sing songs or recite dialogues while washing your hands. You can read comic books or have puppets teach you about कीटाणु. The important thing is to learn about hygiene. तो बनेगा स्वस्थ इंडिया ने जो हाइजीन करिकुलम की पहल शुरू की थी 10 साल पहले, और जो तब से लाखों स्कूलों में पहुंच चुका है, उसे देश के सारे स्कूलों तक हम कैसे पहुंचाएं? और इसी बातचीत के लिए और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंजू सचदेवा, वो प्रिंसिपल है टैगोर स्कूल के, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, और डॉक्टर कोमल गोस्वामी, चीफ ऑफ पार्टी प्लान के। तो आई थिंक सबसे पहले कैन वी गो अक्रॉस टू डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन. थैंक यू सो मच, Dr. Soumya, for joining us today and always being a part of this campaign. The first thing, we've been talking about climate change, and as climate change continues to affect various aspects of our environment and health, what are the specific impacts that we are seeing on children globally? And Dr. Soumya, I'm asking you this क्योंकि आज हमारे साथ यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो हम इन impacts को कैसे mitigate कर सकते हैं? Thank you very much for this show and this question, and for shining a spotlight on the impact of climate change, which is often invisible to most people. We do, see from time to time the natural disasters which are occurring with increasing frequency, but there are also slow onset changes, which are less dramatic and less visible, but yet have a big influence on people's lives. So the impact on children globally is huge, and what is worrying is because they are the actually future generation who are going to face all of the impacts of all the changes, the anthropogenic effects that human beings have inflicted on this environment,
and which has resulted in the acceleration of global warming. And that in turn has had multiple cascading effects. So if you think about what children, are facing today and can be expected to face, of course, there are the big disasters which happen, so you have a flood, or you have a cyclone, or you have a forest fire. These obviously displace people from their homes for either short or long periods of time. People have to move away. Maybe they are living in some kind of temporary camps. So education is affected, nutrition is affected, family bonds are affected. Often families are separated, and all this leads to physical and mental stress on the child. Dr. Swaminathan, hygiene is a crucial aspect of public health, especially for children. Could you elaborate on the importance of hygiene for children's health and development? Yes. So, it has been recognized for a long time now that not only is nutrition and good food important for mental and physical growth and development, but also the enabling factors. And the enabling factors basically are clean water, safe sanitation, good housing, and obviously a good environment for the child to grow up in. Particularly the first 1,000 days of life are very important. And so the child begins its journey in this world when it is still in the womb of the mother. And so the environment that it gets from the mother, is the mother well nourished? Is the mother under stress? Does the mother have infections? Does the mother have access, to nutritious food? All of this starts impacting the growth of the child. And then once the child is born, the first 2 years are very critical in terms of both brain growth and physical growth. And so that's where we actually have a problem. We have stunting in our country, which begins, at or before birth and continues after birth. So the child never attains its full potential. So the genetic potential, in order to really achieve that and to have an economy which is thriving, you need human capital. And human capital is basically children's growth. So I'm saying this because water, sanitation are extremely important determinants of a child's growth and development, whether it's at home, whether it's in the school, whether it's in the community settings. And it's really wonderful that our government has such a strong emphasis on sanitation, through the Swachh Bharat Abhiyan and now through the Jal Jeevan program, trying to bring safe water and safe sanitation to every household and community. I think schools, creches, Anganwadis, these are also very important places where children spend a significant portion of their day. And therefore, it's important that every such facility where children are spending time must have good sanitation. Dr. Swaminathan, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ हमारे साथ बच्चे हैं. So with your experience, could you share some effective strategies जो help कर सकते हैं इन बच्चों को to spread awareness, ना सिर्फ अपने लिए पर इनके communities में भी, खासकर hygiene को लेकर? तो actually बच्चों में ही हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली जिस तरह से वो बदल सकते हैं चीज़ों को, चाहे माँ बाप ना भी समझें, अगर बच्चे समझ जाते हैं, तो हमने ये देखा है तो कि चाहे वो तंबाकू हो, जो बच्चे समझते हैं वो घर जाके अपने पिताजी को कहते हैं कि आपको तंबाकू पीने से मेरे स्वास्थ्य पे भी असर पड़ रहा है, सबके स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है, तो घर के अंदर तंबाकू मत यूज करिए. तो दैट्स अ गुड एग्जाम्पल. बट बच्चों के लिए मेरे ख्याल आजकल इतने डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं सोशल मीडिया और इंटरनेट से, उनको इतनी सारी चीज़ें बताई जाती हैं, तो कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सच है, क्या नहीं है, और किसको हम मतलब बिलीव करें और किसकी बात माने. तो ज़रूरी ये है कि अपने आप को अगर तंदुरुस्त रखना है, और ये भी फिजिकल और मेंटल दोनों, मानसिक तंदुरुस्ता भी ज़रूरी है, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए. सबसे पहले हेल्दी फूड. और आजकल बच्चों में एक ऑब्सेशन हो गया है बाहर से खरीद के खाना खाना, या जो भी एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं उसको खाना, और जो घर पे माँ बनाती हैं खाना, जो दाल चावल रोटी अंडा और सब्जी वगैरह, उसको छोड़ के बाहर का वो सॉफ्ट ड्रिंक्स या पैकेज फूड्स लेके खा लेते हैं. ये एक्चुअली बहुत खराब है हमारे स्वास्थ्य के लिए, और आगे जाके डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह होने की बहुत संभावना ज़्यादा है. आजकल ये भी देखा जा रहा है कि बच्चों में भी बीपी और शुगर की जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं. तो सबसे पहले तो अपने खाने पे
आप ज़रूर अटेंशन दीजिए और तंदुरुस्त खाना जो फ्रेश हो, जो लोकल हो और जो घर पे बनाया हो, उसको ज़्यादातर खाइए। कभी ना कभी बाहर से आप लेके खा सकते हैं, बट रोज़-रोज़ उसकी आदत मत बनाइए, बहुत ज़रूरी। दूसरा फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज़। वैसे तो बच्चे खेलते-कूदते ही हैं, बट आजकल ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे स्पेंड कर रहे हैं, तो ज़रूर 1-2 घंटे बाहर एक्सरसाइज़ में आपका जैसे भी जो भी पसंद हो, चाहे आप जॉगिंग करें या साइकिल करें या बास्केटबॉल खेलें या आप तैरने जाएँ, जो पसंद है। बट वो एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है, उसके बिना जो है मोटापन हो जाता है और मोटेपन से काफ़ी बीमारियाँ। और तीसरा, अपने आस-पास अपने एनवायरनमेंट का ख़्याल रखना। आजकल डेंगू बीमारी बढ़ रही है, जैसे बारिश होती है वैसे डेंगू की बीमारी। क्यों? क्योंकि हमारे शहरों में पानी इतना इकट्ठा हो जाता है हर जगह कि मच्छरें अच्छी तरह से वहाँ पे ब्रीड कर लेती हैं। आप अपने घर में अगर जाके अपने गली में, अपने रोड में, अपने घर के अंदर, ऊपर, बाहर, नीचे देखें कि कहाँ-कहाँ पानी अ, स्टैग्नेंट वाटर है और उसको अगर हम हटा दें और अगर सब लोग करें इसको, तो वो डेंगू का जो मच्छर है, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। वो डेंगू की बता सकते हैं। ये ऐसे ही मैं नहीं बोल रही हूँ, करके दिखाया है कुछ शहरों ने, कुछ गाँव ने। तो इसके लिए एक कम्युनिटी मूवमेंट चाहिए और बच्चे अगर ऐसा मूवमेंट चलाएँ, अपने स्कूल में भी और घर में भी, तो हम लोग डेंगू से और जो मच्छर से बीमारियाँ फैलती हैं, उससे बच सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर स्वामीनाथन। अब हम चलते हैं हमारे यहाँ टैगोर स्कूल की प्रिंसिपल मैम की तरफ। मैम, वेलकम टू द शो। तो अंजू जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कैसे अमल करते हैं ये करिकुलम में अबाउट हाइजीन एंड हेल्थ के बारे में? एक्चुअली हमारे पास जो बच्चे आते हैं दे कम एट वेरी टेंडर एज, 3+ से लेकर अराउंड 10 ईयर्स तक के बच्चे हमारे पास होते हैं। एंड ये हमारी ड्यूटी बन जाती है। एंड दे कम फ्रॉम नॉट वेरी वेल ऑफ फैमिलीज, दे आर अंडर प्रिविलेज्ड, देयर पेरेंट्स आर नॉट very well educated, 99.9% they are illiterate. So this is my responsibility that along with the curriculum, hygiene को भी और बाकी जो भी social issues हैं, not only hygiene, say no to single use plastic, we work on many things. These all things are included in our curriculum. और इन्हें इस एज में ही सिखाया जाता है कि कैसे अपने इवन वॉशरूम कैसे यूज़ करना है, वो भी हमें करना पड़ता है फॉर द नर्सरी स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर टू यंग टू यूज़ द फ्लश। मैं इसे अपना ड्यूटी समझती हूँ, बिकॉज दे आर एम्बेसडर्स जो जाकर अपने फैमिलीज़ में ये हमारा जो भी हमारा एक मैसेज है अपने पेरेंट्स को देते हैं, अपने बड़े भाई बहनों को देते हैं। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और करिकुलम में इंक्लूड किया गया है, बिकॉज एक तो सब कुछ इन्हें प्रोवाइड किया गया है इन द वॉशरूम्स, द हैंड वॉश आर देयर, देन टॉवल्स आर देयर, देन दैट ड्राइंग मशीन इज़ देयर, हैंड ड्रायर इज़ देयर, ताकि जो ये सीख कर जाएँ, इस मैसेज को अपने घर तक लेके जाए। और ये जो हाइजीन लेकर हम चल रहे हैं, हाइजीन प्रोजेक्ट दैट बनेगा स्वस्थ इंडिया, बिकॉज हाइजीन इज़ द प्रैक्टिस। और मुझे लगता है ये हैबिट इनके लिए, इनकी हैबिट बन जाना इज़ वेरी नेसेसरी। एंड थैंक यू, जब आप इस चीज़ को ब्रांड करेंगे, आप इस चीज़ को मैसेज बच्चों को देंगे, तो दे आर डेफिनेटली ये मैसेज इनके घर तक पहुंचेगा और हाइजीन इनकी हैबिट में आ जाएगा। इट विल बी देयर इन देयर प्रैक्टिस। सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि पैनल में सिर्फ महिलाएं हैं और रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी जा रही है यहाँ पर। इनफैक्ट ऑडियंस में भी जितने स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा लड़कियाँ हैं। सो देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक ऑल बॉय स्कूल से हूँ, तो मुझे और अच्छा लग रहा है। आई हैव मोर देन 540 गर्ल्स इन माई स्कूल। यू नो, बच्चे जो यहाँ पे सीखते हैं वो अपने घर ले जाते हैं, अपने कम्युनिटीज़, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो लिंक बहुत ज़रूरी है। और पिछले 10 सालों से जो हमारा डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन है, पहल यही रही है कि हम बच्चों को वी स्टार्ट देम यंग। तो अब करिकुलम की बात मैं आयुष्मान कोमल से इनफैक्ट पूछना चाहती हूँ। अंजू जी, आप करिकुलम की जो बात कर रहे हैं, इस वर्ल्ड में आजकल इतनी सोशल मीडिया, एज अ मदर आई फेस इट, सोशल मीडिया है, बच्चे रील्स देखते हैं या टीवी है, सो मच डिस्ट्रैक्शन। आप करिकुलम को कैसे इंगेज रखते कि बच्चे उसमें इंगेज रहे? हाउ डू यू मेक इट इंटरेस्टिंग बच्चों के लिए? थैंक यू अंबिका, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज वी स्टार्टेड 10 years बैक। वो बच्चा जो कि 10 साल पहले हाइजीन करिकुलम पढ़ चुका है, वो आज
kind of graduate हो चुका है, you know, that बच्चा is now not a बच्चा anymore, he's become or he or she has become into an adolescent. तो वो जो मैसेज है जो हम 10 साल से बच्चों में इंस्टिल करना चाहते हैं, वो आज बच्चे बाहर लेके जा रहे हैं, वो बच्चे जो कि आप सोशल मीडिया चलाना जानते हैं, यू नो, क्योंकि सोशल मीडिया पहले नहीं था, पहले वो करिकुलम था और करिकुलम ही सब कुछ था. हम उस एरा से हैं, मैं, आयुष्मान, आप और मैम, जो बुक्स पे, मतलब बुक्स हमारे लिए सब कुछ होती थी. अब धीरे धीरे इंटरनेट आ गया है, करिकुलम ने उस हिसाब से इवॉल्व किया है. आज हम यहाँ पे, हम कुछ दिन पहले से भी बात कर रहे थे, हमने गेम्स बनाए हैं, हमने वो मैसेजेस बनाए हैं, एंड करिकुलम सिर्फ एक करिकुलम नहीं रह गया है, उसकी डिजिटाइजेशन, हमने वो फिज़िकल एक हाइजीन प्ले पार्क बनाया है जो कि आरागोंडा में है, जो कि गोरखपुर में है, अभी नेक्स्ट हम वो उत्तराखंड में बनाने वाले हैं. वो हाइजीन प्ले पार्क का काम ही यही है कि जो हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं या जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ स्कूल की लिमिटेशन तक नहीं रहे, वो प्रैक्टिकली बच्चे कर पाए. हम इतना मैसेज करते हैं कि हम बाहर क्या लेके जा रहे हैं, पर्सनल हाइजीन, हाइजीन एट इलनेस, हाइजीन एट नेबरहुड, हाइजीन एट कम्युनिटी. सो आई थिंक as the time has evolved, curriculum has also evolved. वो एक बुक पहले वीडियोस बनी, 35 वीडियोस बनी, 35 चैप्टर्स है करिकुलम के, वो 35 वीडियो बने, फिर वो 35 वीडियो एक गेम बना, फिर वो एक गेम, अब हम एक चैटबॉट बनाने वाले हैं, फिर वो चैटबॉट सिर्फ हमारे डिवाइसेस तक नहीं रहा, वो आगे प्ले पार्क की तरह बन के आया. तो आई थिंक इवॉल्व करते जा रहे हैं. और हमारे जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट है, मैं उनको बोलूँगी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट इन हाइजीन करिकुलम, वो अपना मैसेज साथ में लेते जा रहे हैं. वो हम एक थ्योरी पे बिलीव करते हैं दैट इफ वी हैव टच्ड वन लाइफ, दैट मीन्स वी आर टचिंग इनटू 3 लाइफ, राइट, 3x. सो आई थिंक वो आगे कंटिन्यूड है. और वही बच्चे जो आई थिंक ग्रेजुएट हो गए हैं, दे आर द यूथ एम्बेसडर्स हु आर टेकिंग दिस मैसेज फॉरवर्ड. क्योंकि हम बात कर रहे हैं थ्रू द बिगिनिंग, शुरू से जो हम बात कर रहे हैं कि हर चीज़ इज कनेक्टेड, वेदर इट्स द क्लाइमेट चेंज को हेल्थ से कैसे हो, पानी नहीं होगा तो हम हाथ कैसे धोएंगे. आई थिंक दैट कनेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बच्चे जो आगे ये लेके जाएंगे वो बहुत ज़रूरी है. अंजू मैम ने जैसे बोला कि इनके पेरेंट्स जो हैं वो प्रॉब्ली 99% इलिटरेट हैं, अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं, तो इनके पास 2 तरीके हैं अवेयर करने के. प्रीवियस जनरेशन को भी अवेयर करना है और आने वाली जनरेशन को भी अवेयर करना है. ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके पास. दैट्स व्हाई ये सेड कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल है, कि हम और वेरी फ्रीक्वेंटली वी ऑर्गेनाइज PTMs. अभी पीछे हमने एक ऑर्गेनाइज किया था मीटअप with their mothers and elder sisters, जिसमें हमने मेन मेंस्ट्रुएशन हाइजीन पे बात की थी. सो ताकि अभी से इनको उस चीज़ के बारे में पता चल जाए कि कैसे इन्हें हाइजीनिकली आगे इस चीज़ को हैंडल करना है. सेम थिंग. आप अपने माँ बाप को सिखाते हो कुछ? ओह वाओ, क्लियरली. ये देखो, क्या सिखाते हो? कोई एक बताओ जो आप यहाँ से सीख कर जाते हो, जो भी मैम ने बताया. ले लो. तो आप कोई एक चीज़ भी प्रिसाइज कि आपने क्या बताया जाकर. सर, मैं जो भी जैसे स्कूल में मुझे प्रिंसिपल मैम बताती हैं या मेरी मैम किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, तो वो मैं घर पे जाकर अपने पेरेंट्स को और मेरी जो एक छोटी सी बहन है मैं उसे भी बता देती हूँ, चाहे उसे समझ आए ही ना. फिर भी लवली. आपकी छोटी बहन कितने साल की है? सर 5 years. Very good. I think we should all give her a round of applause, क्योंकि वो 5 साल की लड़की के भी she's teaching her younger sister. हाँ, आप क्या बोलना चाहती हैं बताइए. सर, जो मेरे स्कूल में जो प्रिंसिपल मैम चाहे मेरी मैम जो सफाई के बारे में बताती हैं, और मेरे माँ बाप जैसे कोई लोग होते हैं ना, खाना बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, तो वो लोग गंदे हाथ से ही गूंथते हैं, वो लोग मैम हमें वो लोग सिखाती हैं, वो हम अपने पेरेंट्स को जाके बताते हैं कि मम्मी ऐसे करो, और वो क्या कहते हैं सफाई के, मम्मी हैंड वॉश करके ही आटा गूंथा करो और सब्जी हैंड वॉश काट के ही करा करो मैम मम्मी, और हम लोग को खाना भी हैंड वॉश करके ही दिया करो. मम्मा गुस्सा तो नहीं करती? मम्मा सुनती है, मैं भी वही पूछने सुन वाली लेती थी. गुस्सा तो नहीं करती ना मम्मी कि क्यों टोक रहे हो? गुड, वेरी गुड. हेलो मैम. हेलो सर, मेरा नाम आस्था पवार है. तो जो चीज़ें हमें स्कूल में बताई जाती है, वाटर सेविंग, एनर्जी सेविंग, वेस्ट मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट के बारे में जो बताया जाता है, वो हम अपने घर में जाके बताते हैं कि एनर्जी सेविंग करनी है, और जो सोलर पैनल है उनका यूज करना है. जो वाटर टैप है, तो हमारे स्कूल में पुश वाले वाटर लगे हैं, जिनसे मतलब जो वाटर है वो वेस्ट नहीं होता है, मतलब उसकी सेविंग होती है ना. आज तक ऐसा होता है बच्चे ना कई बार ना नल खुला करके छोड़ जाते थे, वो पानी गिरता रहता था, तो उससे मतलब अब जो पुश वाले नल हैं उससे तब वाटर सेविंग होती है. और जो वेस्ट मैनेजमेंट था हमारे स्कूल में, तो बच्चे कैसा होता है कि सारा कूड़ा इकट्ठा एक साथ रख देते थे,
जिसे जानवर बंदर वगैरह आते थे तो उस प्लास्टिक को भी खा जाते थे। तो हमारे स्कूल में होता है कि जो गीला कूड़ा है उसे अलग रखा जाता है, सूखा कूड़ा अलग रखा जाता है, और जो प्लास्टिक होती है वो इको ब्रिक बनाई जाती है जिसे हम अपने घर में भी करते हैं और अपने मम्मी पापा तक को बताते हैं और वो ये चीज़ें करते हैं और अपने आसपास वालों को भी बताते हैं। थैंक यू सर। बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर ऑल द चिल्ड्रन। कोमल, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, रवि हमें बता रहे थे हाइजिया गेम के बारे, कॉमिक्स के थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं, जैसे उन्होंने कहा हम इंटरेस्टिंग एप्स बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हम टेस्ट कर लेते हैं आयुष्मान की गेमिंग। He said he's a gamer. So I now, used to be, not anymore. Okay, so she's going to test you on the Haija Ayushman, game. this is a very simple game though, but very interesting. तो हमने ये last year I think हमने बनाया था Haija, and इसमें so we'll start playing. Resume. So if you can see, ये एक सिनेरियो है, यहाँ पे बच्चा है जो और सारे के सारे germs इसके पास आ रहे हैं, इसको अटैक आपने मारा। So this is level 1, very simple बच्चों के लिए। इससे आप बच्चे को इधर उधर कर सकते हैं। You can move the kid in the direction that you want. इनको मारना कैसे? And ये this is the Dettol shield. So if the germ will come closer, just click on this. Yes, and yes. So as the level will increase, the speed of germs is going to increase, and you can move the kid. Yes. And that's how exactly that's the challenge. Oh yeah, that's cool. Yeah, and there are various levels. So this is the bomb. You have to. Oh no, you have to Destroy the bomb. destroy the Of bomb. course. Come here. Come at this side. Yeah. So this is a power up. You I did think that. आप show continue करो, मैं ये खेलता हूँ। Just before we wrap, अंजू जी जाते जाते अगर हमें बता सके, क्या आपने बिहेवियर में आयुष्मान जो we've all seen post कोविड, क्या आपने वो चेंज देखा है? बेसिक लेसन जो होता है, क्या वो टफर हो गया है? इट्स वेरी सरप्राइजिंग। मैं अभी बैठे यही सोच रही थी कि 10 साल पहले तक हमें वो स्वच्छता, हाइजीन वर्ड हम लोग नहीं यूज़ करते थे। वी सेल्डम यूज़ दैट वर्ड। 2014 में जब स्वच्छता अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उसके बाद से स्वच्छता शब्द इतना ज़्यादा डिक्शनरी में आ गया और हमारे स्कूल में और छोटे छोटे बच्चे भी ये वर्ड यूज़ करने लग गए, स्वच्छता। और तभी से शायद उससे पहले तक, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, उससे पहले तक स्कूल्स में वॉश बेसिन पर हैंड वॉश नहीं दिए जाते थे, सोप रखना, ये चीज़ें कोई मैंडेटरी नहीं थी। आफ्टर दैट इन 2016 व्हेन आई जॉइन सम स्कूल एज अ प्रिंसिपल, तो वहाँ जाके मुझे याद है मैंने फर्स्ट टाइम हैंड वॉश लगवाए, हैंड वॉश दैट स्टेशन, हाँ, हैंड वॉश स्टेशन बनवाए वहाँ पर, और ये चीज़ें प्रैक्टिस में स्टार्ट करवाई। और मुझे एक इंसिडेंट याद है कि आई वॉज वॉकिंग बाय, तो एक नर्सरी का बच्चा दूसरे बच्चे को हैंड वॉश सिखा रहा था, नर्सरी चाइल्ड, जस्ट 4 year old ही मस्ट बी, उसको ये बता रहा था कि देखो ऐसे हाथ धोते हैं। तो मुझे वही लगा कि दिस इज़ व्हाट वी कॉल बिहेवियर चेंज, और यही चेंज हम चाहते हैं। हैंड वॉश इज़ इन देयर हैबिट। तो जब भी मिड डे मील आता है हमारे स्कूल में, मिड डे मील बच्चों को मिलता है, तो बिफोर दैट वी मेक क्लास टीचर मेक इट श्योर कि सब बच्चे हैंड वॉश हो या इनके पास सैनिटाइजर, दे कीप सैनिटाइजर बॉटल विद देम। Thank you so much, Anju ji. Thank you, Komal. And well, that was fun. We are slipping into a short break. We will be back with a lot more on this Independence Day special. So stay tuned. साफ हाथ, साफ तन, साफ तन तो साफ मन, साफ है जो तन जो मन, बढ़ता जाएगा वतन। Did you know that any art form, dance, music, painting, sculpture, is a form of unspoken communication and therefore a very effective tool for learning? Of course, it is also a visual or musical representation of the lesson you are trying to teach. Well, over the past decade, art has been instrumental in creating behavioral nudges, exemplified by the NDTV Dettol Banega Swasth India campaign. Music in particular holds the power to connect with people and deliver impactful social messages. Here's a look at how Dettol has harnessed the power of music to drive societal change through art.
வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடுங்க அத நலமா வாழ்வதற்கு வழி செய்யுங்க रवि, गाना बहुत दिलचस्प है, बहुत कैची है और अलग अलग भाषाओं में इसको सुनना देखना बहुत ही दिलचस्प है। तो ये जो आप ग्रास रूट लेवल तक पहुँचे हैं अलग अलग भाषाओं के ज़रिए, तो ये क्या इफेक्टिव तरीका रहा है वहाँ तक पहुँचने का? मुझे लगता है गाना हर जगह पे है, अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग फॉर्मेट्स में है, अलग अलग आर्टिस्ट्स हैं। कोई बहुत पॉपुलर है, कोई बॉलीवुड चार्ट्स पे नंबर 1 है, कोई रीजनल चार्ट्स पे नंबर 1 है। तो हमें लगा क्यों नहीं हम कल्चरली अडेप्टिव सॉन्ग्स कंपाइल करें। और ये सारी मेरी ये जो शुरुआत है ये हुआ, मैं राजस्थान में बाड़मेर में अपनी मोटर बाइक पे टूर कर रहा था। तो मुझे रईस खान जी मिले एक छोटे से गांव में बाड़मेर। रोटी तो आप है। और वो सब लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो गर्मियों के दिन थे, मई जून के। मैंने पानी बोला कि मुझे पानी वानी पीना है, पहले बोलते बैठिए। उन्होंने बताया मैं रईस खान हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अपने टूर्स मुझे दिखाए, कह रहे देखिए मैं गाना भी गाता हूँ। वो ना एक माउथ ऑर्गन होता है इंस्ट्रूमेंट, वो सब लोग बजा रहे थे। तो मैंने कहा कि अच्छा आप कहाँ पे गाते हैं? बोलते मैंने स्वीडन में गाया है, मैंने नॉर्वे में भी गाया है, मैंने काइट फेस्टिवल में भी गाया है, मैंने ढोलावेरा में भी गाया है। तो मैंने कहा तो अच्छा आप यहाँ पे ही रहते हैं? बोलते हाँ। तो मैंने कहा कि मैं गाना सुन सकता हूँ? तो उन्होंने फिर स्पॉटिफाई पे मुझे अपने गाने सुनाए। वाह। तो मैंने वो गाने सुने फर्स्ट टाइम, और उसके बाद में मैं 3 मंथ्स में उनको डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया प्रोग्राम पे फॉर्मली लेके आया। उन्होंने लंगे जो होते हैं, राजस्थान में एक फोक आर्ट है, लंगों में उन्होंने हाइजीन एट होम, हाइजीन इन नेबरहुड, पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग इलनेस के ऊपर उन्होंने सॉन्ग्स बनाए। और उस टाइम पे राजस्थान में डॉक्टर BD कल्ला वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर। सो ही सेड दिस इज अ फैबुलस वे ऑफ जुगलबंदी। तो ये सारे सॉन्ग सारे स्कूल्स में होने चाहिए, आदर्श विद्यालय में, उत्कर्ष विद्यालय में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स में, सब जगह पे। तो हमने वो सॉन्ग्स पहले लॉन्च किए और उसका इतना मैसिव रिस्पॉन्स आया बच्चों से। और जब मैं स्पॉटिफाई पे भी जब वो गाने सुनता हूँ अभी भी मुझे लगता है और सब कुछ बिल्कुल फ्रेश है। उसके बाद में सेकेंड एक अपॉर्चुनिटी मिला, घूमते घूमते राजस्थान से हम लोग जा रहे थे, वी रीच टू तमिलनाडु। तो वहाँ पे जेम्स वसंतन जो है, ही वॉज ट्राइंग एंड टेस्टिंग समथिंग विद द वेरी यंग किड्स, आउट ऑफ स्कूल किड्स। तो हमने बोला आप किसी ने मुझे मिलवाया उनसे शाम को, बोला कि आओ इनका प्रोजेक्ट दिखाते हैं आपको। And the kids were actually performing, and most of the kids were out of school kids with the last quintile, super poor. तो मैंने बोला तो फिर अच्छा तो आप सॉन्ग करते, बताया मैं इतना बड़ा डायरेक्टर हूँ वगैरह वगैरह। उन्होंने बोला कि देखो रवि, मैं कमर्शियल करता हूँ और बच्चों को मेंटर करता हूँ और सॉन्ग सिखाता हूँ मैं, ताकि इनका फ्यूचर बन सके। मैंने कहा फिर आपके पास तो पूरे तमिलनाडु के बच्चों का फ्यूचर भी है और पौंडीचेरी के भी, तो विल यू डू 5 songs विद मी? उन्होंने बोला हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, सारे आउट ऑफ स्कूल किड्स रहेंगे उसमें जिनको मैं सिखा रहा हूँ, एंड दे विल परफॉर्म। आई सेड perfectly well, we will take all the kids. We launched it with the Deputy Chief Minister and the Chief Minister of Tamil Nadu and the Education Minister. Again, कुछ songs तो super duper hit है, and the album is again on Spotify. That's great. Thank you so much. And since we are talking about the crucial role art and music play in behavior change, particularly in health and environmental education for children, joining us is Samar Singh Jodha, founder Red Balloon. He's an artist who's been working on marginalization and conflict issues across Asia, Africa, and Middle East. Thank you so much, Samar, for joining us. Thank you very much. Thank you. So, Samar, I wanted to ask you, Red Balloon, tell us about that. It shows how art empowers children, and you're specifically working with children in the age group of 13 to 23. That age is again very, very crucial. Tell us about the work which you all do. Yeah, so, it's not any rocket science, but the way this entire platform works is it's a mentorship program. So when we talk about leadership, conventional leadership thing is every kid wants to have a certificate after a month or whatever time the child has put in. We are not really talking about that kind of a program. This is going through, basically we use visual arts and performance arts as a tool. So you're not gonna
master a puppeteer, or you're not going to become a filmmaker, but you use these tools through experts, which we put together, and the narrative actually comes from the kids. So we worked in in some place in Chhatarpur with a community where the challenge was sanitation and addiction. Now, how do you put that across? So they came up with that. We worked with about 20-odd kids, and these kids basically, they developed, a song and dance. They developed, some other engagement poster campaign, and we got a puppeteer who basically brought in all the recycled plastic, and they made puppets out of it. They wrote the story with it. And then they went back to the community. They did a door-to-door campaign. And then within the community, they presented something which otherwise, like earlier I was listening to kids, that when you talk to your parents, जो कहते हैं कि अरे तुम्हें क्या पता है, तुम तो अभी पैदा हुए हो. But art is something which is a very softer platform, and you know better that how it can engage because it's a non-judgmental space. Yes. And it really helps you to open up. And so it didn't end there. These kids actually took this to other schools, and they became their local heroes. And so that's the change maker. That's the leadership we talk about. Yeah, that's the impact, the strong impact. Art is something which is not age specific. I think somebody who's like 10-year-old or 11-year-old can be like more artistic than somebody who's like 30, for That's example. right. So I think it's beautiful that, but you're especially targeting 13 to 23. That's right. That's right. You're so right about it. I think the biggest problem with young people really face, old people do like me also, but at a young age is this whole judgmental space. Yeah. And creativity is a non-judgmental space because it's so free-flowing that you can have 10 different views on that same music. And you can still, get away with it. It's not mathematics. It's not your left brain. Yeah. It's a very free-flowing space. So now we've heard the Banega Swasth India albums. Now we are finally going to listen to the Banega Swasth India anthem. But before we see the creation, we have to meet the creators. Yes, and that's why we are joined by Kausar Munir, someone who is known for writing deep emotional songs. She's the one who has written the anthem. Also joining us is Javed Ali, the soulful voice behind this anthem. Kausar, thank you so much for joining us. When you heard the brief, what was that one thing that inspired you to write this? Tell us about that, please. So before the brief, I'd like to talk about the fact that I was very happy to be attached with these two very valuable and prestigious brands, which is NDTV and Dettol, not just for the kind of name that they have, but the work that they do, the values that they stand for. And of course, the brief was fairly simple, but वही simple चीजें जो होती हैं वही जाके बड़ी क्या कहते हैं धारणाएं बनती हैं, campaigns बनते हैं. And to keep yourself clean, to have basic hygiene, to keep your hands clean. Brief was pretty simple that you have to spread the message that when you start keeping yourself healthy and clean is when the whole community and perhaps the nation itself prospers. So, Javed ji, you also sung the campaign anthem last season. In fact, all your songs have that special touch. But when there's something particular, मुझे लगता है बच्चों के लिए आप कुछ special करते हैं हमेशा. There's an extra element which goes into your singing. Actually, जो भी गाना हम गाते हैं, जो भी कैरेक्टर होता है, तो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर हमको अपने आप को उस सिचुएशन में मोल्ड करना होता है. लेकिन जब बात आती है बच्चों की, तो आपको ना बच्चा बनना पड़ता है, नटखट बनना पड़ता है, नॉटी बनना पड़ता है. और आप इमेजिन कीजिए बच्चे जब है ना शरारत करते हैं तो किस तरह से करते हैं. तो वो सारी चीज़ें आपको अपने गाने में, अपने एक्सप्रेशंस में लानी पड़ती हैं. तो मैं वही करता हूँ, और जो भी गाना जिस सिचुएशन का हो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ढलना पड़ता है. तो मैं अगर बच्चों की बात आती है तो मैं नटखट बन जाता हूँ, शरारती, थोड़ा नॉटी बन जाता हूँ. Samar, हम यहाँ बच्चों से बात कर रहे हैं. Of course, we have Kausar ji and Javed ji on with us, and we're going to be going back to them. You work very closely with children. तो initiatives के बारे में बताइए, like you told us about Chhatarpur. किस तरह, जैसे हमने बात की कि art has an impact, जो visual impact है, उसके बारे में हमें बताइए कि खासकर ये age उनके development पर किस तरह असर डालता है. Awareness हो cultural पे, health पे, environmental issues पे, किस तरह उनके overall well-being पर contribute करता है.
आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों के लिए ख़ास करके विद सो मच ऑफ डिजिटल नॉइज़, यू नो, इतनी सारी हर तरह की आवाज़, हर तरह का जजमेंट. तो आई थिंक द बिगेस्ट थिंग विच रियली comes with art is confidence, because the whole judgmental space can take a walk. And I think that really helps them in, you know, making any statement. It's not like, you know, you do a theater piece and, अरे मैंने अच्छी acting नहीं की, पर दूसरों ने कहा कि हाँ नहीं बड़ी अच्छी की, तो you know that's done with. So you know it's really your inner voice. And जैसा आपने कहा, you know, everybody is born an artist. It's just that we send them to education system and they start punching in all the chemistry and math in your left side to activate it. But it doesn't mean that it's gone to sleep. The right brain is still there. But it's just matter of, and I feel very strongly that, you know, children can be actually that change maker if we give them the tools, you know, whether it's a creative space or whether a platform where they can actually go and amplify whatever issue they believe in. And again, it comes back to there's nobody judging them. So they can, you know, that I worked with 20 girls out of Bombay, out of Mumbai. They were dealing with traffickers. And it's such a raw issue. But they could create something to a level where they could take it back to the community and amplify it there, you know. So That's amazing. तो आर्ट चाहे वो डांस हो, म्यूजिक हो या पेंटिंग, हमें बेहतर और हेल्दियर हैबिट्स कैसे डेवलप करती हैं? हम में से बहुत लोग म्यूजिक के साथ चीज़ों से जुड़े हैं और उन्हें याद रख पाते हैं. बिल्कुल. और जो म्यूज़िक है, किसी भी तरह की कला है, बट ख़ास तौर से म्यूज़िक, क्योंकि वो तो एक साइकोलॉजिकली भी प्रूवन है कि वो दिमाग में रह जाता है. इट काइंड ऑफ रिवायर्स योर ब्रेन एंड देन इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर मेमोरी, you know, hard disk. It's wonderful that NDTV and Dettol decided to make an anthem for this campaign, so that even though, you know, it may sound really simple कि हाथ धो, wash your hands, stay clean, but if you really strip it down, it's such a simple but powerful message. If in our hands and in our person and in our thoughts and in our deeds we are clean, it kind of, you know, that does it. So to be able to put that into a song, to put that into an anthem, was fun, but it was also hard, क्योंकि जितनी सरल चीज होती है उतनी मुश्किल होती है. It's easier to do big difficult winding things, but to be like I am being right now, but to be precise and to be kind of convey something within the parameters of a song, of a lyric, it's hard. And I'm so glad all of us together have done I think a fair job. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जावेद, संगीत को एक थेरेपी माना जाता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा लर्निंग टूल भी है. हम इसे कैसे बच्चों की हेल्थ, हाइजीन और मेंटल वेलबींग के साथ जोड़ सकते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ना, जो म्यूज़िक है उससे बड़ी थेरेपी कोई भी नहीं है. अगर हम हमारे बच्चों को म्यूज़िक थेरेपी दें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाना, एक पोएम है, या एक कोई भी चीज़, आप एक कोई वाक्य ले लें. फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाना बहुत ही पॉपुलर है, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा. अब म्यूज़िक निकाल दीजिए इससे, तो आप जल्दी लर्न नहीं कर पाएंगे. लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की, क्योंकि ना वो एक राइम बना रहता है, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा. तो इस तरह से अगर हम म्यूज़िक के ज़रिए बच्चों को चीज़ें सिखाएं, तो उनका लर्निंग स्किल बेहतर होगा, उनका ब्रेन डेवलप होगा. और ऑफ कोर्स जो म्यूज़िक का जो एक सोल है, उनका सोल भी मुझे लगता है, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपका दिमाग बहुत शांत रहता है, आप मेंटली बहुत पीसफुल महसूस करते हो. तो जब इस तरह से बच्चों की शुरुआत की जाएगी, तो मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है. Kausar, you've received a lot of recognition for your work in the hectic schedule of the film industry. How do you balance creativity with your well-being? In fact,
How do you balance self-care while managing the demands of your career? Because we have been talking about self-care, which is an integral part of everyone, but especially for women, because very often women kind of forget themselves. So, Kausar, that's for you especially, I wanted to know. I mean, it may sound like a cliche, but you're absolutely right. Women, whether it's in their homes or in their workspaces, they tend to be the first respondents, as you were, caregivers. And even if we're not talking about disease or illness, just kind of you kind of respond to a situation with a feeling of trying to take care of others and trying to keep things equanimous. तो जाहिर है कि उसमें क्या होता है, you kind of lose some sort of a grip or handle on how you're doing and how you're keeping. So I feel it has to be a practice. Any good habit has to be a practice. One has to get out of the mindset of that, taking care of yourself is selfish or self-centered. It is really, really important, and it's also important if you want to take care of people around you. I remember मेरी दादी वो कहती थी कि खुद का ख्याल रखना social service, and I feel it makes a lot of sense, because if you are kind of healthy and happy and strong, you'll be able to bring that energy and those resources to people you love and the community at large. कौसर, आपके साथ मैंने काफ़ी फिल्में की हैं, स्पेशली मेरी प्यारी बिंदु, आपने बहुत अच्छे गाने उसके लिखे हैं, एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू जो आप कर रही हैं अभी. एंड जावेद, वी हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू. इन फैक्ट, इफ यू कुड शेयर अ स्निपेट ऑफ द एंथम और सिंग अ फ्यू लाइंस फॉर ऑल द लवली चिल्ड्रन सिटिंग हियर. जरूर जरूर. साफ हाथ साफ तन, साफ तन तो साफ मन, साफ है जो तन जो मन, बढ़ता जाएगा वतन. साफ हाथ साफ तन, साफ तन तो साफ मन, साफ है जो तन जो मन, बढ़ता जाएगा वतन. चलते रहे करते रहे हम वतन की राह पूरी, चलते रहे करते रहे हम वतन की राह पूरी. Well, thank you so much, Kausar ji and Javed ji, for joining us. Banega Swasth India campaign anthem, Badhte Rehna Hai Zaruri, emphasizes the importance of cleanliness for personal and national progress. Clean hands lead to a clean body and mind, fostering a flourishing nation. It encourages overcoming challenges by staying clean and shedding worries, leading to unity and the arrival of a golden era, Amrit Kal. The core message is to keep moving forward and continuously work towards the nation's betterment. साफ हाथ साफ तन, साफ तन तो साफ मन, साफ है जो तन जो मन, बढ़ता जाएगा वतन. साफ हाथ साफ तन तो साफ मन, साफ है जो तन जो मन, बढ़ता जाएगा वतन. चलते रहे करते रहे हम वतन की राह पूरी, चलते रहे बढ़ते रहना है जरूरी. साफ हाथ साफ तन तो साफ
Well, that was an anthem, really fantastic music. You can download this music from the Banega Swasth India website. The URL is on your screen. Please go ahead and download this. Well, Ayushman, I don't know if I can, but I would like to ask you if you could hum some song, some words, or a few lines, or a song. I think बच्चे आप सुनना चाहते हैं आयुष्मान जी को. आप मुझे मना कर सकते, बच्चों को नहीं. एक मेरा नया गाना है, इसका नाम है रह जा मेरे कोल. It goes like साडी सावां दी सौ ठंडियां छावां दी सौ सवेर दी कॉफी दी सौ रोज दी माफी दी सौ पहली बारिश दी सौ मेरी गुजारिश दी सौ रह जा मेरे कोल रह जा मेरे कोल तू रुक दे नी हंजू रह जा मेरे कोल तू रुक दे नी हंजू. Thank you so much. Wow. Well, clearly you can see the joy, and in fact, we've loved the music. Thank you so much for doing that for us. Thank you. Well, as we wrap the first decade of one of India's longest-running public health campaigns, we have something exciting lined up in season 11. We are introducing the Hygiene Innovation Challenge, which is open to the young minds from the age of 15 to 25. So, well, this is your chance to join Banega Swasth India and be a part of the change. This will be a competition that seeks to identify and reward groundbreaking innovations in health and hygiene to discover and support solutions that can be scaled and are sustainable, raise awareness, and to foster collaborations between innovators, experts, and organizations. The details of this innovative challenge will be on our website very soon, so please stay tuned. Well, I think before we move any further, a quick thing about the innovation, Ravi. What were the thoughts behind this challenge as we move on to season 11 on October 2nd? So, hygiene is a basic foundation for health, and innovation is super important. So, as a basic foundation for health, it's important, like we invest significantly behind this. And it's also a very interesting self-care tool. So, more the reason to invest, and more to get the like-minded people, innovators, UN agencies, civil societies, kids, parents, new moms, old moms, artists, everyone together, so that we make India swasth and sampann. Thank you. Ravi, your relentlessness and excitement is very, very contagious. It's amazing. And last 10 years of Banega Swasth India has been a learning experience. And as we look into the future and think of the challenges ahead, like climate, we realize how much we need to continue the focus on hygiene and hand wash. How we need to ensure that we stop infections and diseases right at the cusp. Over the last 10 years, together with you, our viewers, our stakeholders, the government, and all our partners, we have achieved a lot, but there's still a long way to go. And we're ready and excited to move with many more initiatives and innovations planned. Thank you so much for being a part of our passion and commitment.